Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yusuf and I am the first year MBBS student at IU Medical College and I have scored 176 marks out of 180 and my FSC marks is 1002 out of 1100. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Fahim Khan, currently a first year MBBS student at IU Medical College. Basically, I belong to SWAT and I did my FSC and matriculation from Fazlullah College, Mardan. My FSC score that was 1117 out of 1200 and MDCAT score was 117 out of 180. Assalamu alaikum. This is me, Shahid Jan, belong to Luwardir, and I got 173 out of 180 in MDCAT 2025. I did my FSC from Edward Model College, Temargara, and I got 1107 out of 1200 in FSC. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Musa Khan. I am first year MBBS student at IU Medical College, Abbottabad. I have done my FSC from Dreams College, Temargara. My MDCAT marks is 170 out of 180 and my FSC marks is 1127 out of 1200. Rahim. This is Suhail Hashmi, first year MBBS student at IU Medical College. I got 174 marks out of 180. My FSC score was 1100 out of 1200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Saeed Ahmad, first year MBBS student at IU Medical College. I got 176 out of 180 in MDCAT and 1100 out of 1200 in FSC. For physics, उसके लिए ये है कि the more you practice, the more you will learn. Personally, I used Genius Physics और इसके साथ साथ physics in second के lecture would be practice that if you watch that and then it will be better. For physics practice, I used Genius, KIPS, and Injikan MCQs along with Sir Izhar Seb and physics in second lectures. Also, Injikan lectures are very helpful for some of the chapters. For physics lectures, I watched physics in second lecture, and for practice, I used the same academy physics in second, Sir Mudassir Zia Sahab, practice MCQs and past paper MCQs from ePrepare Academy for physics. फिजिक्स के लेक्चर के लिए मैंने फिजिक्स इन सेकंड और सर इज़हार सेब के लेक्चर में, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत रिसोर्सेज यूज़ की है. मैंने केप्स बुक से भी प्रैक्टिस की है, जीनियस से, ग्रेप सीरीज से. ज़्यादातर मैं जो प्रैक्टिस की है मैंने इंजिकान की प्लेटफॉर्म से की. For physics, I use the physics in second academy lectures and their MCQs also and also the Injikan Academy Sunday test MCQs. फिजिक्स के लिए मैंने पर्सनली फिजिक्स इन सेकंड्स के लेक्चर यूज़ की थी और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जीनियस सीरीज रिकमेंड करता हूँ. और जो मल्टीपल टेक्स्ट बुक है, मतलब पंजाब, फेडरल वगैरह, फिजिक्स में उससे अवॉइड करें, सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक पर फोकस करें. अच्छा, बायो के लिए तो मैंने कोई भी लेक्चर नहीं लिया बिकॉज यू शुड हैव टू मेमोराइज द बुक लाइन बाय लाइन. इसकी की मेमोराइजेशन के लिए ई प्रिपेयर के जो बुक लाइन एमसीक्यूज है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. बायो यू शुड प्रैक्टिस द गोल्डन बायोलॉजी, दैट इज अ प्रैक्टिस बुक. जो केपी की बुक है वो लाइन बाय लाइन आनी चाहिए. इसके साथ साथ जो फेडरल बुक है वो भी, उसको भी थोड़ा टच दिया करें ना. बायोलॉजी के लिए मैं बायोलॉजी गार्डियंस के जो लेक्चर्स है वो आपको रिकमेंड करता हूँ और साथ में अपनी टेक्स्ट बुक की जो लाइन है उसको बार बार रीड करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं. इससे आपकी मेमोरी डेवलप हो जाएगी. For biology, your first priority should be your textbook along with federal book. And for lectures, you can watch biology guardian lectures for specific chapter that you are facing some problems. And for practice, you should use a golden series of biology along with Injikan MCQs. बायोलॉजी के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आपकी अपनी प्रोविंस के 100% MCQs वहाँ से आते हैं MDCAT में. लेकिन जब बुक आप बार बार रिवाइज करते हैं आपको अपने वीक पॉइंट्स का और अपने क्लियर कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं चलता. तो इसके लिए आप बुक लाइन MCQs प्रैक्टिस करें. ई प्रिपेयर अकेडमी के जो बुक लाइन MCQs है स्पेशली बायोलॉजी के लिए वो मोस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से. मैंने खुद भी वो प्रैक्टिस किए थे और इससे ये होगा कि आपको बुक लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी. आपको अपने वीक पॉइंट्स और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इससे. तो ई प्रिपेयर एकेडमी के जो बुक लाइन MCQs है वो मस्ट आप ट्राई करें बायोलॉजी के लिए. और बायोलॉजी के लिए तो ज़्यादा लेक्चर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है. मैंने बस जो एकेडमी में टीचर से पढ़े थे बस उसके बाद मैंने बुक की रिवीजन की बार बार और बुक लाइन MCQs प्रैक्टिस किए. बायोलॉजी में जस्ट आपको अपनी बुक मेमोराइज करनी चाहिए. बायो के लेक्चर के लिए मैंने सर बिलाल सेब की लेक्चर देखी है और प्रैक्टिस के लिए मैंने फेबर की एकेडमी के जो बुक लाइन MCQs है इससे मैंने प्रैक्टिस की है. और MM बुक से मैं पहले तो आपका टेक्स्ट बुक है वो क्लियर होना चाहिए. इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने खुद चैम्पियन बुक, इस तरह केप्स और इंजिकान की MCQs प्रैक्टिस की थी. इसके अलावा आपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, इवन हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगी. इस तरह केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे टेबल्स भी है और ऐसे बहुत से पॉइंट्स है
जो आपको बार बार मतलब मेमोराइज करने होते हैं, तो इसमें शॉर्ट नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने बार बार करना है। केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सरासत की लेक्चर देखी है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने चैंपियन बुक से प्रैक्टिस की है, और इंजिकान के प्लेटफॉर्म पर इंजिकान एकेडमी के संडेटेस है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। For chemistry, you should practice champion chemistry. That is a practice book, and along with that इसमें ये है कि secondary chemistry truly मुश्किल है, तो इसको वो आपको लाइन बाय लाइन याद करनी होती है। उसमें जो कैटलिस्ट है, वो जो रिएक्शन वगैरह होते हैं ना, वो आपने खुद याद करने होते हैं। For chemistry, you should focus on your textbook. You should memorize the topics line by line, and also memorize all the tables. And for the memorization, the book lines of e-prepare will help you a lot. और अगर लेक्चर्स की बात की जाए तो मैंने बजाते खुद द फिजिक्स इन सेकंड के लेक्चर जो है वो लिए थे। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग आई विल रिकमेंड द एकेडमी ऑफ ग्राम लॉजिक along with the lectures of Sir Nasir Abbas and book of the chemical English grammar. For English, you should watch out the lecture of Sir Nasir Abbas and note it down in your register and then revise it. और लॉजिकल रीजनिंग के लिए है कि आप लोगों ने पास पेपर वगैरह देखने होते हैं, और जो क्यूसीए की संडे टेस्ट है उसी इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। जो वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से मतलब कवर करना होता है। और इसके अलावा लेक्चर्स अगर आप इंग्लिश के लिए देखना चाहते हैं तो इंसाफ एकेडमी की जो प्लेलिस्ट है उस पर सारा जो सिलेबस है वो अपलोड हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आप नियर फियर की जो लेक्चर्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। For English, I watched Sir Nasir Abbas lectures, and also Tarun Brewer Sir notes, and his lectures are also available on YouTube. For English practice, I used KDP MDCAT grammar book, and also the MCQs of Injicon Sunday test. For logical reasoning, I watched near peer lectures which are available on YouTube. And for practice, the Injicon Sunday test MCQs are very helpful, along with the MCQs of past papers. इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स है। मैंने खुद इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली यूट्यूब से किए थे, सर नसीर अब्बास साहब, और उसके बाद जो रानी मैम के एक समराइज लेक्चर है 10 आवर्स का, ये दोनों मैंने खुद यूज़ किए थे इंग्लिश के लिए। और इसके साथ जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज है वो मैंने इंजिकॉन एकेडमी के संडे टेस्ट एट्सेट्रा यूज़ किए थे। लेकिन आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो ई प्रिपेयर एकेडमी के जो न्यू लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के MCQs है, ये 100% रेलिवेंट है एमडीकेट के साथ, क्योंकि एमडीकेट में इनके 9 MCQs है। आप इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, और साइंस सब्जेक्ट्स को अपने टाइम ज़्यादा देना होता है। तो ये रेलिवेंसी और एफिशिएंसी के लिए ये प्रिपेयर एकेडमी के जो न्यू अपडेटेड लेक्चर है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के, ये मोस्ट रिकमेंडेड है। इंग्लिश के लिए अगर आपकी बेसिक भी है तो नसीर अब्बास से ठीक है, बेसिक स्ट्रांग है तो आपको मैं तरंगवर सर के लेक्चर है आपको रिकमेंड करता हूँ।